तो पहले हाँ जी करिए। Okay. हाँ जी, good afternoon everyone. I am Arun Verma from Team Cypher. I welcome you all to this afternoon webinar on good, replicable and innovative practices in the tobacco control in India. Today's topic, very important topic, subnational adoption and implementation of WHO Framework Convention of Tobacco Control, popularly known as WHO FCTC, which is Article 5.3. And on this, under this article, what are the policies in Uttar Pradesh? That is the topic for today. And our presenter of the day is Mr. Vivek Avasthi, who is an executive director with the Uttar Pradesh Voluntary Health Association, Uttar Pradesh. So on behalf of the organizers, the Cypher, Static Institute for Public Health Education Research, and RCTC, that is the Source Control Center for Tobacco Control, PGMR, Chandigarh. I am really delighted to extend a very warm welcome to our speaker, Dr. Vivek Avasthi. I have already mentioned about the topic he is going to present, and I'm sure that the work he has done and the ideas he has going to present will definitely add to the knowledge of the participants. I also extend a warm welcome to Dr. Rakesh Gupta, who is a president of the Cypher, the participant from the EPCO, Mr. Rajiv Chaudhary, our esteemed guests and participants and the public health students. So thank you once again, Dr. Avasthi, and now I'll request our president, Dr. Rakesh Gupta, to introduce our speaker of the day and request him to present his presentation. Thank you very much. Thank you, Arunji. So Mr. Vivek Avasthi is in UP Voluntary Health Association. He is the executive director, and he is a very passionate tobacco control advocate and an activist, I must say. And I think we can skip the details, and you can start with your presentation, please. Yes, Vivek. Thank you, Rakesh sir. I hope I am audible and my screen is visible. Very much audible. Right. So good afternoon, everyone. Thank you, Cypher. Thank you, Dr. Rakesh sir, for giving me this opportunity. I will keep my presentation in Hindi and English, mixed language, and I will try to touch actually a brief on FCTC Article 5.3, a little background before I directly jump to the implementation of Article 5.3 Uttar Pradesh. Some examples of tobacco industry interference in the state of Uttar Pradesh. As I think we all agree that the tobacco industry is considered the biggest hurdle in tobacco control worldwide. So strategy adopted to counter the interference of tobacco industry in the state, and some in the process some innovative actions taken by state government with support of course, then the union, now vital strategy and UPVHA. So this is the outline of my presentation. As we know, the tobacco is only legal consumer product that kills half of its users when used and directed by the manufacturer. So this shows how lethal is the tobacco product. And so the question arises first, what is tobacco industry? Who is tobacco industry? So as per the WHO, the tobacco industry comprises those persons and companies who are engaged in the growth, preparation for sales, shipment,
advertisement and distribution of tobacco and tobacco related products. In brief, this is all whole of the mechanism from growing to selling, manufacturing, transport, and all the things are known as the tobacco industry. We know the front groups who are growing tobacco, the front groups who are selling tobacco, producers, and these all are tobacco industry. That's why we said that this is the mighty tobacco industry. So a little brief about the WHO FCTC. We know the WHO Framework Convention on Tobacco Control is the first global health treaty negotiated under the auspices of World Health Organization. And this is the only treaty till date, international treaty adopted by WHO. Was adopted by the World Health Organization on 21st May 2003 and entered into force on 27th February 2005. During the negotiation, India played a leading role in FCTC to finalize its provisions and was the regional coordinator for Southeast Asia countries. So India played a very important role. And what were the recommendations, the articles? India started adopting these articles. That's why the National Tobacco Control Program, the rules, the laws for tobacco control are in place. So a brief about, just come to the point. There are many provisions in FCTC to save the lives from the ill effect of tobacco, and this was for the supply side, to reduce the supply side, to reduce the demand side. And the main objective of particular article 5.3 was to protect present and future generations from the devastating health, social, environmental, and economic consequences of tobacco consumption. And the general obligations in the setting and implementing public health policies for tobacco control, parties should protect these policies from the commercial and other vested interests of tobacco industry. This was the main fundamental of Article 5.3 of FCTC. Just a minute. So, in a little detail, Article 5.3 protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests of tobacco industry. The guiding principles are: there is a fundamental and irreconcilable conflict between the tobacco industry interest and public health policy interest, because we know this is the business for them, for tobacco industry, the people who are involved in tobacco marketing. This is the business. However, this is a lethal. So there is a clear conflict of interest in their benefit, their interest, and public interest. Principle 2, parties when dealing with the tobacco industry or those working on to further its interests should be accountable and transparent. So who are parties dealing with the tobacco industries? Public officials, policymakers, and others should be accountable and transparent. And because their products are lethal, the tobacco industry should not be granted initiatives to establish or run their businesses very cool and calm manner. So no policy should be there to facilitate tobacco industry. This is the overall the principle of Article 5.3. Now I am coming to the state particular, Uttar Pradesh. We all know the state is the biggest in the country in terms of population. More than 200 million people lived here. So, and in administrative, if I talk about administrative, there are 75 districts, 18 divisions. As per the GATE survey,
35.5% adult population is tobacco user in Uttar Pradesh, and as per GYTS, almost 23% children aged 13 to 15 are using tobacco in any form. This is the overall picture of Uttar Pradesh. So some example here I am sharing. We are talking about the tobacco industry interference and how the state and we collectively do something to protect. So tobacco companies don't want any policies, strong policies to come to implement, to enforce. So because this harms their business, so this is the simple interest of tobacco industry. So when we are, suppose when the enforcers are implementing the COTPA, the provisions of COTPA, they are imposing fine. The tobacco industry person are coming to the vendors to keep their moral up and to violate, and they are reimbursing their penalties to the vendors, and this cause sometimes the enforcement of the and implementation of the policies derailed. So this kind of acts happening in Uttar Pradesh. Tobacco companies reached education institution. This is important to understand that tobacco industry is has the phase, double phase, and they want to, everyone wants, they are lethal and they are killing people. So they want to maintain to अपनी मैं कहूँ तो अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं पब्लिक के बीच में, विद द पॉलिसी मेकर्स, विद द ऑफिशियल्स, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, ताकि उनके रिलेशन बन सके, एंड देन आफ्टर दैट दे कैन टेक द उसका फायदा उठा सके. तो इस तरीके से वो स्कूलों में पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम कंपटीशन करेंगे, बच्चों के लिए आयोजित करेंगे और बच्चों को इनाम देंगे, सारी हेल्थ इश्यूज और तमाम इश्यूज पे काम करने की एक दिखावा. When we were implementing the tobacco vendor licensing in municipal corporations, still we are implementing. The front groups called the tobacco vendors assembled and they protest in front of the district collector office, in front of the municipal corporation office, and this was widely covered under the media. So in these districts, whatever we are doing, they are protesting. ITC tried to use logo for its promotion, as I shared earlier, that they want to build their reputation. They are good people, so they were participating in PM Poshan Abhiyan. In Saharanpur district, kit distribution to TB patients and primary medical van was launched with logo of ITC. This was not supposed. Actually, ITC signed a MOU with Urban Development Department for waste management and green cities. And one thing I have noticed that mostly ITC and tobacco industries are trying to work on health issues, on environmental issues, and these Sir, kind with Urban Development Department, whatever department is Hello. doing Sir, something. Sir, Yes. sorry to interrupt you. Can you please speak in Hindi? In English? No, Actually, In huh, Hindi. in Loudly. Hindi. Ji. Vivek ji, actually, yeah, he is trying to speak in Hindi most of the times. Vivek ji, because Haan, sir. everything is there in English, so you can speak in Hindi if you want. Okay, right, sir. This I is don't most think convenient. anybody has any problem because Hindi is understood by most of them. Right, right, sir. मैं हिंदी बोलता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है. हाँ. तो पान मसाला एसोसिएशन ने हमें मेल भेजने शुरू किए जब हम टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट कर रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को. एक्सक्यूज मी. रिसेंटली फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी ई सिगरेट का एनफोर्समेंट हुआ है और हमारी टीम मेंबर को थ्रेट किया है टोबैको इंडस्ट्री के लोगों ने कि आप एनफोर्समेंट करा रहे हो
और हम आपको देख लेंगे बाद। तो दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स वी आर फेसिंग। सो कमिंग टू द इनिशिएटिव्स, ओके नाउ हिंदी मैं भूल गया था। इनिशिएटिव्स जो लिए गए उत्तर प्रदेश में, उस पर आते हैं सीधे। तो बैकग्राउंड की थोड़ा सा बात करेंगे। इनिशिएटिव जो हमने जिनके जिनके बेस में ये पूरा एक खड़ा किया, एफसीटीसी पहले ही 5.3 में इसके लिए रिकमेंडेशन है, एम्पावर पॉलिसी हमारे पास है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हमारे पास है, कोटपा 2003 का लॉ हमारे पास है, टॉफी है, टॉफी में साफ साफ लिखा हुआ है टोबैको इंडस्ट्री के साथ काम ना करें। एडवाइजरी रिलीज हुई थी, इशू हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, उसका उसका बैकिंग है हमारे पास। टेक्निकल सपोर्ट है वाइटल स्ट्रेटजी का। और जो वर्ल्ड वाइड या मैं कहूँ कि नेशन वाइड जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयरिंग होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी है साइफर ने। तो इस तरीके से भी लोग सीखते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड है ओवरऑल। उसको करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया, जब एडवाइजरी आया तो सेक्रेटरी मैडम से हम लोगों ने बात किया कि मैडम ये भी होना चाहिए, एक पॉलिसी है जिससे टोबैको इंडस्ट्री को बिना स्टॉप किए तो टोबैको कंट्रोल पॉसिबल नहीं होगा। और वो पॉलिसी हमारी प्लेस में आई नवंबर 2019 में। फिर उसके बाद ऑर्डर इशू होना हाई लेवल से शुरू हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्पावर। तो जो हमारी स्टेट लेवल कमेटी बने, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके लिए स्टेट लेवल लेवल कमेटी भी बनी, उसके रूल्स भी बने। और कमेटी का ये जिम्मेदारी है कि वो कहीं भी अगर वायलेशन हो रहा है तो उनका सूचना आ रही, संज्ञान लें, उसको रिव्यू करें। तो स्टेट सेल के मन में आया कि क्यों ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसको कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट बड़ा है, उत्तर प्रदेश 75 डिस्ट्रिक्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए आज, और वो समय समय पर इसको रिव्यू करती रहे डीएलसीसी के साथ, तो एक बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर फिर काम शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बात है कि 5.3 पॉलिसी के भी जो भी रिकमेंडेशन है या जो भी आर्टिकल के जो भी प्रोविजंस हैं, उससे ज़्यादातर अधिकारी परिचित हैं जो भी टोबैको कंट्रोल में भाग लेते हैं मीटिंग्स में। रेगुलर वर्कशॉप होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पर हो। उसमें एक एजेंडा पॉइंट जरूर रहता है, कई बार स्पेसिफिक 5.3 पर या जो स्टॉप टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस को लेकर स्टेट लेवल पर स्पेसिफिक मीटिंग हुई है, जो इसमें स्टेट लेवल ऑफिसर से भाग लिया है। एक और इनोवेटिव चीज मैं आगे दिखाऊंगा। अब एक बोर्ड डेवलप किए गए ताकि लोग और ज्यादा अवेयरनेस आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा अवेयरनेस का है। पॉलिसी तो आ गई, अगर पॉलिसी में फिर अधिकारी उसके प्रोविजंस नहीं जान रहे हैं, जिनको इम्प्लीमेंटर्स हैं, जिनको उनको लागू करना है, फॉलो करना है, तो वो काम अधूरा रह जाता है। तो उसके लिए जागरूकता के लिए सारी चीजें की गई, मैं आगे शेयर करूंगा। इंस्टीट्यूशन से बात की गई कि कोड ऑफ कंडक्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इसमें डॉक्टर शिवम जी ने बड़ा सहयोग किया, और वाइटल स्ट्रेटजी के लोगों ने की, और ड्राफ्ट करके दिया कि इस तरीके का भी करा लिया जाए। तो हम लोगों ने यूपी में अच्छी तरीके से किया। 115 से ज्यादा इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको डिक्लेरेशन किया, अपने वेबसाइट पे भी लगाया। जिनके पास वेबसाइट नहीं है, उन्होंने अपने लेटर हेड पे कमिट किया कि हम टोबैको इंडस्ट्री के साथ किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। बहुत सी मीडिया स्टोरी, जबकि अब इससे पहले जो हमारी स्टेट लेवल वर्किंग ग्रुप कमेटी मीटिंग हुई थी, डायरेक्टर जनरल मैडम की अध्यक्षता में, मीडिया ने हेडलाइन छाप दिया था कि किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करने देंगे टोबैको इंडस्ट्री को अपने हेल्थ पॉलिसीज में या टोबैको कंट्रोल पॉलिसी में। तो ये सारी चीजें यूपी में कई बार हुई हैं। पॉलिसी ऑर्डर सर्कुलर्स हाई लेवल से रिलीज हुए। फिर उसके बाद जो है, अगर वायलेशन कहीं हुए तो एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है, किया जा रहा है। और अगर कहीं वायलेशन होता है तो सूचना मिल जाती है। कई लोग व्हाट्सएप के जरिए या किसी माध्यम से शेयर कर देते हैं कि देखिए ये टोबैको इंडस्ट्री क्या कर रही है, आईटीसी क्या कर रही है, सब लोग अवेयर है कि नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि एक मैं तो बहुत इसको इतना कमिटेड जो एसटीसीसी है या कमिटेड ऑफिशियल्स हैं, वही इतनी जल्दी एक्शन इनिशिएट करते हैं। लेकिन जब भी सूचना हुई है, उधर से एक्शन इनिशिएट हुआ।
तो मैं बात कर रहा था स्टेट लेवल नोटिफिकेशन पॉलिसी ऑर्डर की और कमेटी की, वो आज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसको गठित किया गया और उसके बाद उसके रूल्स भी जारी किए गए। और रूल्स को मैं ब्रीफ में बता दूं, जो है अवेयरनेस करना हार्मफुल जो नेचर है टोबैको प्रोडक्ट्स का उसके बारे में, और टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस क्यों करती, कैसे करती है, और क्या उससे नुकसान और फायदे हो सकते हैं, और उसके बारे में अधिकारियों को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको जागरूक करना। अ, ऐसे मेजर्स को स्थापित करना कि जो इंस्ट्रक्शन है पॉलिसी मेकर्स और टोबैको इंडस्ट्री के, वो कम हो, और अगर हो तो ट्रांसपेरेंट हो, और पार्टनरशिप और एग्रीमेंट टोबैको इंडस्ट्री के साथ, सरकार के साथ, उसको रोका जा सके। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के और टोबैको इंडस्ट्री के साथ, तो उनको प्रॉपर तरीके से उनके लिए एक मैकेनिज्म बन जाए। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टोबैको इंडस्ट्री टू बी ट्रांसपेरेंट, ये रूल्स फॉलो हो। डू नॉट गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट न दिया जाए टोबैको इंडस्ट्री को, कि नहीं आप आम इंडस्ट्री हो, आपको हम जमीन दे देंगे, या इस तरीके की चीजें आपको सब्सिडी दे देंगे, इस तरीके की चीजें को अवॉइड किया जाए। वो पर्पस है मेनली जो हमारे रूल्स हैं। उसके बाद मैं सारे लेटर्स तो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, सारे ऑर्डर्स, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बात करें कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की जो पहले प्रयास किया गया, एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि पहले हम लोग फ्रेमवर्क बना लेते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहते हैं, और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं, वायलेशंस होते हैं उनकी रिपोर्टिंग होगी और उस पर एक्शन होंगे। तो ये पूरा एक खाका तैयार किया गया प्रदेश में, और जिसके क्रम में फिर महानिदेशक साहब से फॉलो लेटर गए कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाइए। और ये अभी रिसेंट 4 दिन पहले एक लेटर फिर फॉलोअप में गया है, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट 45 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और अब सारे लोगों से मांगा फिर से गया है कि आपको लिखा गया था, आप बना के दीजिए। और ये दूसरी तरफ लेटर है जो 13 तारीख को गया हुआ है। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है 6-7 बार ऐसा हो चुका है। जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, उनका ये प्रारूप है, 45 डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा चुकी हैं। और इसमें बहुत अच्छा, मैं तो तारीफ करूंगा, स्टेट सेल लगातार इस पे ध्यान देते हैं, और हमारी यूपी विचे की टीम पूरा सपोर्ट करती रहती है इसमें। अ, अब केवल कमेटी की बनाने की बात नहीं है, अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, तो उनका रिव्यू भी करा रहे हैं। टीएलसीसी मीटिंग होती है या दूसरी मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक एजेंडा पॉइंट रहता है, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नंबर 4 पर देखा जा सकता है, कोई भी तंबाकू उद्योग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उनके द्वारा रोक लगाते हुए। तो डीएम साहब की तरफ से ये इस तरीके का है। दूसरा अभी रिसेंट आप देख सकते हैं, 6 नंबर पर है, समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया कि तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु अनुच्छेद 5.3 के अंदर किसी भी तंबाकू कंपनी के साथ कोई भी गतिविधि साझा न की जाए, उसकी सूचना कमेटी के अध्यक्ष महोदय को प्रेषित की जाए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो अगर चलती रहेंगी इंटेंसिवली, तो मुझे लगता है टोबैको इंडस्ट्री के लोग इससे परिचित होते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसका असर बहुत अच्छा होगा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ऐसा मैं मानता हूँ। एक आदेश अपर हाईएस्ट लेवल से ऑलमोस्ट गया था हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, सभी सचिव अपर सभी पूरे जितने भी शासन के अधिकारी हैं उनके पास गया था, समस्त जिला अधिकारी के पास गया था, कमिश्नर के पास गया था, कि फाउंडेशन फॉर टोबैको स्मोक फ्री वर्ल्ड, आप जानते हैं फ्रंट ग्रुप है टोबैको इंडस्ट्री का, उनको वो फंडिंग करते हैं बैंक से, और कहते हैं सोशल वेलफेयर का काम करिए, और उनका लोगो चमकाइए, ये सारी चीजें हैं, और तमाम उसके पीछे हिडन एजेंडा है। तो उस हिडन एजेंडा को चलाने के लिए इन्होंने फाउंडेशन फॉर स्मोक फ्री वर्ल्ड बनाया। तो उस पर जब मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी भी आई, एक लेटर आया, तो तुरंत इधर से एक आदेश जारी हुआ, सभी विभागों में गया। इसका भी बहुत योगदान रहा, ताकि हमारे यहाँ ये फाउंडेशन फॉर स्मोक फ्री वर्ल्ड सक्सेस नहीं हुआ। और फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया, अपना मुखौटा बदल दिया, दूसरे नाम से आ गए हैं। डॉक्टर शिवम जी ने इसको शेयर किया था। अब आगे हमारे यहाँ कुछ ऐसा होगा तो अभी इस पर भी हम लोग आदेश निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी निकलेगा वो नया जो उन्होंने बनाया है। इस तरीके से हमारे यहाँ शिक्षा निदेशक साहब का भी अ, आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडलीय निरीक्षक के लिए निकाला जा चुका है।
कमिटीज के बारे में बता चुका हूँ मैं, इंस्टीट्यूट्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता चुका हूँ, कैसे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन दिया है, आईडीए, आईएमए और जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं साथ साथ, ताकि हम लोग सारे रास्ते बंद कर सकें। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा मुद्दा है टोबैको कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें जो हैं मैं कहूँगा कि अगर उनको बार बार सामने ना ला जाए तो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर ओवरलोडेड हमेशा रहते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अगर बार बार संज्ञान में आता है और उनको सेंसिटाइज किया जाता है कि सर इतने लोग मर रहे हैं, टोबैको इंडस्ट्री पैसा कमा रही है, इस तरीके से वो स्ट्रेटजी और इस तरीके से हथकंडे अपना रही है, तो वो जरूरी है। अगर उनको पता चल जाता है तो एक बार उनके रहता है जेहन में कि ये सारी चीजें हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं और टोबैको इंडस्ट्री की जो वास्तविक जो चेहरा है वो उसको पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से 5.3 पर या टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस के ऊपर काफी मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग स्टेट लेवल की भी हुई, डिपार्टमेंटल भी हुई, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 160 लोग स्टेट लेवल से जो मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे, ये फोकस डिस्कशन हुआ, इसमें भी स्टेट लेवल ऑफिसर सारे थे, 5.3 के ऊपर ही था पर्टिकुलर, और ये सेंसिटाइजेशन भी 5.3 के ऊपर ही हुआ जिसमें स्टेट लेवल की मीटिंग। तो इस तरीके की गतिविधियां भी हुई डिस्ट्रिक्ट में भी, जब भी कुछ गतिविधियां होती हैं उसमें एजेंडा रहता है और चर्चा होती है। जो मैं बात कर रहा था, एक डिक्लेरेशन बोर्ड इस तरीके से डेवलप करने की एक और इनोवेटिव जो प्रयास है स्टेट सेल का, विद द सपोर्ट ऑफ एनजीओ एंड अदर सिविल सोसाइटीज, तो उसी का एक प्रतिफल अगर देखा जाए तो ये डेवलप किया गया जो हमारे यहाँ स्टेट पॉलिसी है उसके उसके साथ, और इसको अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने। अडॉप्ट करने के बाद इस इसका जो खाका है, इसका जो इंटेंट है, उसको डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भी सीओ और जो भी लीडिंग ऑफिसर्स हैं, की ऑफिसर्स हैं, उनको भेजा गया कि इस तरीके के बोर्ड जो है अपने यहाँ डिस्प्ले करें टोबैको इंडस्ट्री के लिए। इस पर लगातार काम चल रहा है स्टेट से भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। एनटीसीपी के अंतर्गत बजट से ये बोर्ड छापे गए बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में और उनको डिस्प्ले किया गया। फायदा उसका ये है कि कोई भी ऑफिशियल्स, अगर सीनियर लेवल ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में भी, अगर बोर्ड लगा है तो उनकी नजर आती रहती है और ध्यान रहता है कि तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप, इसका मतलब है कि तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप करता है। और जो भी लेटर्स जाते हैं वो डिस्प्ले करने के, उसके साथ पॉलिसी जाती है और जो बैकअप में ऑर्डर्स हैं, फॉलो अप ऑर्डर सब लगाए जाते हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है और इस तरीके के ऑर्डर अलग डिपार्टमेंट से भी निकलते रहते हैं कि इस तरीके का डिस्प्ले बोर्ड लगाएं, और खुशी होती है कई बार हम लोग जाते हैं ऑफिस में ये बोर्ड लगे हुए दिखते हैं। तो एक ये बोर्ड का कॉन्सेप्ट है जिसकी कुछ पिक्चर्स हैं, हम देख सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट ऑफिस में लगा हुआ है, पंचायती राज में लगा हुआ है, डीएम साहब खुद उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बोर्ड्स भी इस तरीके के भी जौनपुर में डेवलप किए गए, मीटिंग में सबको दिए गए, सबने लगाए, वो खुद का एनटीसीपी का इनिशिएटिव है। पुलिस अधीक्षक जालौन और इस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा स्टेट का डायरेक्टरेट एजुकेशन का और जिलाधिकारी कार्यालय, सब जगह ये सारी चीजें डेवलप की, जो बहुत ही मुझे लगता है प्रभावी भी है और इम्पोर्टेंट भी है इस तरीके की गतिविधियां करना। और ये कुछ मीडिया कवरेज है जो टोबैको इंडस्ट्री, जब टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग या इस तरीके का कोई इनिशिएटिव हुआ, ये टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग के लिए पर्टिकुलर है, तो इससे उनको बहुत लगता है कि उनका टोबैको इंडस्ट्री को लगता है कि इससे काफी चीजें सीमित हो जाएंगी, तो उसका तुरंत जो है विरोध करने के लिए वो सड़कों पर जमा हो जाते हैं। मथुरा में भी हम जब गए थे टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग के दिन, लाइसेंस रिलीज करना था डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को एक साथ, तो वो डीएम साहब से हमसे पहले 50 लोगों को प्रतिनिधिमंडल आके मिलके गया था, तो हम लोग वहीं मौजूद थे, तो वो मिलके गया था कि मत करिए, ये सारी चीजें हैं, तो वो करते हैं, कोशिश है। कुछ वानगी है कि टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग की एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें हाउस से कई बार अप्रूवल है, प्रोसीजर्स हैं, सारी चीजें हैं। तो जब भी ये तरीके के प्रोसीजर्स लिए जाते हैं, एक और हथकंडा अपनाते हैं कि वो बड़ी संख्या में बल्क में चिट्ठियां भेज देते हैं, ऑब्जेक्शन जब मांगे जाते हैं मीडिया में कि कोई ऑब्जेक्शन हो, इस तरीके का टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग लागू होने जा रहा है,
तो आप सूचित करें. सो दे स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और टारगेटिंग सम ऑफिशियल्स इस तरीके से करते हैं. तो बल्क में 600 चिट्ठियां गई, तो उसको फिर हम लोग सपोर्ट करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि उनका निस्तारण करते हैं कि नहीं, एक जैसा कंटेंट लिख के किसी एक नहीं भेजा हुआ है, इनकी मंशा ठीक नहीं है. तो इस तरीके का भी गतिरोध देखने को मिलता है. मथुरा में भी देखिए, बल्क में एक तरीके से पूरी चिट्ठियां उन्होंने भेजी, किस तरीके से ऑफिसर को टारगेट किया. तो ये सारा हथगंडा टोबैको इंडस्ट्री अपनाती है, जो बहुत ही कॉमन है. और उसके बाद कुछ इनिशिएटिव मैं बता रहा हूँ जो एक्शंस लिए गए जब भी वायलेशंस की या इस तरीके के इंटरफेरेंस की कोई रिपोर्ट हुई, या टैक्टिक्स जो टोबैको इंडस्ट्री अपनाती है अपना छवि चमकाने के लिए. तो जब भी उसकी सूचना हुई, जैसे कि उन्होंने लोगो लगाने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट में अपना लोगो लगा के पोषण अभियान में भाग ले रहे थे, तो लोगो हटवाने के लिए गया और पत्र, फिर वो सारे लोगो आईटीसी के हटाए गए. सहारनपुर की जो मैं बात कर रहा था, वो सहारनपुर में भी इस तरीके से आईटीसी का लोगो लगा के ये चला रहे थे. इसमें जब संज्ञान में आया स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल के, तो महानिदेशक साहब की तरफ से तुरंत चिट्ठी गया, साथ में सारी पॉलिसी गई कि ऐसी ऐसी पॉलिसी है, सारा कुछ बताया जा चुका है, ऐसा क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, गंभीर स्थिति है. और इस पर उनसे उनसे आख्या मांगी गई, उनका स्पष्टीकरण मांगा गया 15 दिन के अंदर. तो फिर 15 दिन में तो नहीं आया, लेकिन 1 महीने बाद आया कि ये हमसे गलती हुई है, और वो टोबैको इंडस्ट्री का जो है लोगों का प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, और ये जो बैन चल रही है वो हटा ली गई है, वो बैन को रोक दिया गया है, और जो इवेंट हुआ था उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, और सारी चीजें. तो इस तरीके से ये एमओयू भी, वो मैंने बताया ना, टोबैको वेंडर लाइसेंसिंग करने जाइए तो वर्मा डेवलपमेंट के साथ एमओयू साइन करने पहुंच जाते हैं. तो पहले तो सारी चीजें हैं कई बार. तो इस पर भी तुरंत प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा गया कि ये ऐसी स्थितियां हैं. तो इसमें भी काफी कार्रवाई हुई. व्यापारी हर जगह खफा हो जाते हैं जब भी पान मसाला तंबाकू की नियमावली कोई अगर रहती है, लॉ रहता है, अगर उसको लागू करने के प्रयास होते हैं, तो इवन की इन्फोर्समेंट टीम के लिए भी लखनऊ में हम लोग गए थे, या फतेहपुर का भी मैंने बताया, या अम्बेडकर नगर में बीड़ी फैक्ट्री पे छापा पड़ा था, वहां पे बहुत विवाद हो गया था. या रायबरेली में हुक्का बार पे जब छापा पड़ा था, वहां बहुत विवाद हो गया था. या अयोध्या में हुक्का बार के बारे में काफी विवाद हो गया. तो ये सारी चीजें जो है कंट्रोवर्शियल खड़ी करने की कोशिश करते हैं, गतिरोध करते हैं. सीतापुर में भी इसी तरीके से सारे लोगों ने इकट्ठा करके, तो वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार ये बाकी बहुत से काम है वो करे, लेकिन टोबैको कंट्रोल का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट ना करे, इन्फोर्स ना करे. तो ये सारी स्थितियां आ जाती हैं. और इसके साथ साथ ये यूपी में चल रहा है अभी लगातार. हम लोग चाह रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा, अभी फिर हम लोगों ने 28 तारीख को स्टेट लेवल वर्कशॉप रखी है, स्टेट लेवल वर्किंग ग्रुप कमेटी मीटिंग है. एजेंडा पॉइंट उसमें भी डाला गया है. उसमें भी जब सारे अधिकारी आएंगे तो उनको साइनेज भी, जो डिक्लेरेशन बोर्ड है वो भी कॉपी एक दे दी जाती है, वो अपने डिस्प्ले कर लें. और डिस्कस भी होता है टोबैको इंडस्ट्री पर. ऐसा नहीं हो सकता कि टोबैको इंडस्ट्री पर डिस्कस ना हो अगर चलेगा. तो ये सारी चीजें हैं. 5.3 का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हम लोग प्रभावी बनाने का प्रयास स्टेट में करते रहते हैं. जो हर्डल्स है मेन, जो एक सीएसआर एक्ट है भारत सरकार का, उसका फायदा उठाते हैं अपनी छवि चमकाने के लिए. और पर्टिकुलर जहां उनको टारगेट करना होता है उसमें अपना सीएसआर एक्टिविटी करके अपना लोगो लगाने का प्रयास करते हैं. तो काफी बड़ा एरिया रहता है. कई बार क्या होता है कि डिप्लोमेट्स हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो मिलने का प्रयास करते हैं, तो उनका पता नहीं चलता है ये आईटी से है. ये सारे ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, प्रैक्टिकल है. बिग स्टेट है, ह्यूज नंबर ऑफ टोबैको कंपनीज हैं, आ, उनके पास ज्यादा बैकअप करने के लिए लोग हैं, तो उसका फायदा उठाते हैं. ओवरऑल यही है. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अपनी तरफ से, अब आगे हम लोग क्या करेंगे इस पर मैं नहीं जाऊंगा. एक बार फिर से मैंने अपना, मुझे लगता है अपनी बात ठीक तरीके से कह ली है. थैंक यू सो मच अगेन फॉर patient listening and for inviting me, giving me this opportunity. Thank you for Cypher.
So, Thank you, Vivek any ji. question, I am happy to answer. Yeah, Vivek ji, I think I'll just comment upon the presentation first. तो विवेक जी ने सबसे पहले तो हमें ये बताया कि व्हाट इज टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, उसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं. तो आई आस्क फॉर कमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर राकेश गुप्ता, मिस्टर रमेश गांधी, मिस्टर अरुण वर्मा, Rajiv from RCTC. But before that, I'm just giving the salient features of the presentation. And he also told about the FCTC 5.3 and why it is important, because it is important for protection of public health policies with respect to tobacco control and other vested interest in tobacco industry. और इन्होंने ये भी बताया कि यूपी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है और वहां पे काम करना नेचुरली बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज पर गैट सर्वे 35.5% प्रेवलेंस है अडल्ट्स की, और गैट्स GYTS4 के मुताबिक 23% इवन adolescents they are using tobacco. और ये किस लिए है एम्पावर्ड कमेटी, क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टोबैको इंडस्ट्री से लड़ना है हमें. और इन्होंने ये भी बताया क्या क्या इनिशिएटिव्स इन्होंने किए, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी इन्होंने कमेटीज बनाई हैं. कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, शायद सभी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, मगर काफी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने बनाई है. और इन्होंने ये भी दिस हैज बीन प्रोपगेटेड or it has been disseminated to all the administrative officials, then political leaders, whistleblowers. So they all know about this protocol and the committee also, the empowered committee. और ये regularly monitor कर रहे हैं violations को in the state level coordination committee और district level coordination committee. और इन्होंने जो protocol भी बनाया और उसके बारे में भी जो main features हैं protocol के वो भी बताया. और एक सबसे मेरे को अच्छी बात लगी कि जो इनोवेटिव साइनेजेस और क्रिएटिव्स इन्होंने बनाया टू बी पुट अप ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और बहुत सारी न्यूज आइटम्स इन्होंने शेयर की. टोबैको इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, मेनली द वेंडर्स, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी टोबैको लॉज. सो थैंक यू विवेक जी. सो बिफोर आस्किंग फॉर कमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर राकेश गुप्ता, मिस्टर रमेश गांधी, अरुण जी, and from Rajiv, I'll just ask all to please put on your videos so that I can take some snapshots, please. अपने ना ये विवेक जी आप बंद कर दो. इसमें Stop. क्लास स्लाइड दिखाने को बोलिए एक बार विवेक जी को, वे फॉरवर्ड वाली. वो दिखाते हैं आपको, और जब आपके कमेंट्स लेंगे तब दिखा देंगे. एक बार ये स्नैपशॉट लेना, ले लीजिए. हाँ जी. सो प्लीज सारे जने अपने ना ये वीडियोस ऑन कर लें. सबने नहीं किए वीडियोस ऑन, प्लीज. वीडियो सारे प्लीज ऑन कर लो. तो चलो ठीक है. विवेक जी वो सेकंड लास्ट जो लाइन स्लाइड है ना आपकी, वे फॉरवर्ड, वो एक मिनट डॉक्टर राकेश गुप्ता कुछ इसके बारे में कमेंट करना चाहते हैं, वो देखिए. कमेंट नहीं करना, मुझे देखना ही है सिर्फ. कमेंट तो अच्छा. नहीं अच्छे आपके तो कमेंट्स ही मांगने में. अच्छे काम पे कमेंट करने की बहुत जरूरत नहीं होती है. नहीं फिर भी नहीं, चलो काम तो विवेक जी ने बहुत बढ़िया किया, कोई शक नहीं है. आपका गाइडेंस तो हमारे लिए सर नहीं, valuable पंजाब से ने देखो सबसे एकदम पहले से ये किया था कि इमीडिएटली आफ्टर द वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन, आई थिंक इट वाज 2015, तो हमने ये बना दी थी एम्पावर्ड कमेटी. बट उसके बाद जितनी भी स्टेट्स आए हैं ना, सबने कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किए. और ये जो आपने साइनेजेस जो लगाए हैं अपने बिल्डिंग्स के बाहर, एटलीस्ट पीपल दे नो अबाउट द लॉ, अबाउट द नोटिफिकेशन. हाँ जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता प्लीज. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड मेरा ये एक तो नेचुरली मुझे लगता है कि ये जो काम किया है शायद देश भर में सबसे ज्यादा किया है, देश का सबसे बड़ा स्टेट है. आसान नहीं है इसको करना. बिल्कुल. तो विवेक जी ने बहुत आसानी से बता दिया, बट आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एफर्ट है. सो कुडोज टू यू एंड मच अप्रिशिएट कि आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं. और
गवर्नमेंट को साथ लेके चलना इस काम के लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली जो है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली होती है, क्योंकि रेवेन्यू उसको वहीं से मिलता है। बट हमने डॉक्टर राकेश, हम कल भी बात कर रहे थे कि सिर्फ नोटिफिकेशन से ही कितना हमारे पंजाब में तो बहुत फर्क पड़ गया था, हाँ। बिकॉज दे लाइक देम वी आल्सो डिसेमिनेटेड टू द पॉलिटिकल लीडर्स एंड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो उससे काफी अंतर पड़ता है। कोई That's भी right. नोटिफिकेशन, मतलब हर नोटिफिकेशन का ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि कोई फायदा नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। हाँ जी, आगे। तो जैसा मैं सोचता हूँ, एक तो ईयरली ऑडिट रिपोर्ट भी इसका होना ही चाहिए, अब इतना समय से चल रहा है। हाँ हाँ, दूसरा, इसका अच्छे से एक कंपाइलेशन होना चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेबल टू द पीपल, एंड जिससे दूसरी स्टेट्स में इसको रेप्लिकेट करने के लिए एक एनकरेजमेंट मिलेगा। जैसे आपकी साइफर की एनुअल रिपोर्ट होती है, हाँ जी, हाँ जी। आरसीटीसी के पब्लिकेशंस हैं, मेरा ख्याल है विवेक जी के साथ वो कोलैबोरेटिव एफर्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ना, कि ये शालिनी बस्सी है हृदय में, हाँ उसने ये थोड़ी सी एफर्ट की थी, और हाँ मे बी अदर्स आल्सो, उन्होंने ये सारे कंपाइल किए थे कि किस किस में क्या क्या है, ये जो हमारी नोटिफिकेशंस में, सो तो अगर शी ट्राई टू कंपाइल। हाँ, इस तरह का एक मैनुअल बन जाएगा, चाहे वो यूपी का स्पेसिफिक हो तो वो भी जरूरी है, पर नेशनल लेवल पे भी इस चीज की जरूरत है। राजीव नोट कर सकते हैं राइट, इस बात को, कि अगर कभी कोई ग्रांट में स्कोप दिखता है इसको किया जा सकता है। बिल्कुल। जो चंडीगढ़ मीटिंग में हमने टोबैको इंडस्ट्री की बात करी थी, और जिसपे मुझे बोलने के लिए कहा था कि इसको एंड गेम से कैसे जोड़े हैं टोबैको इंडस्ट्री के साथ, वो एक इम्पोर्टेंट इशू है। मेरा ख्याल है वो शायद हर टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस के साथ उसका मेंशन किया जाना ठीक रहेगा, क्योंकि टोबैको इंडस्ट्री इज नॉट ए नॉर्मल इंडस्ट्री, वी ऑल नो, एंड टोबैको कंट्रोल एफर्ट जो हैं वो डाइल्यूट होते भी टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस के कारण ही हैं। तो एटलीस्ट हमारे अवेयरनेस और एडवोकेसी में ये बात आ जानी चाहिए कि वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एंड गेम ऑफ टोबैको, एंड वी आर, आवर फोकस इज टोबैको इंडस्ट्री, नॉट द यूजर्स। कि राइट, यूजर्स तो बहुत सारे हैं, करोड़ों में हैं। टोबैको इंडस्ट्री जो है और इसकी जितनी एफिलिएट्स हैं, चाहे वो टोबैको इंडस्ट्री के रूप में हो, सब्सिडरीज हों या उनके फ्रंट ग्रुप्स हों, उनको फिर भी जो है वो आप एक पॉलिसी के लेवल पे मैनेज कर सकते हैं कि वो अपने को फेज आउट कर लें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई थिंक एक मुझे लगता है विवेक, आप अपने प्रेजेंटेशंस में इस चीज को अगर डालना चालू कर देंगे तो एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि यूपी में इस चीज की जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट होना चालू हो जाएगी कि एंड गेम की भी बात हो रही है हमारे साथ, है ना। जी सर। तो दैट इज माय सजेशन, आई थिंक आई एम मच अप्रिशिएटिव। ये बहुत बड़ा काम है और आसान नहीं है, एंड आई एम ए नोविस एज कंपेयर टू यू, तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बैक टू यू राकेश जी। सो राजीव, बाकी के जैसे हैं मिस्टर रमेश गांधी, आप उनको इनवाइट कर लो। जी सर। So thank you. As mentioned by Dr. Rakesh Gupta from Jaipur, sir, it's really appreciated effort by Dr. Vivek Trivedi, sir, Vivek Avasthi, sir. That हमारे एक विवेक त्रिवेदी भी हैं, त्रिवेदी। जी जी, मैं मिला हूँ सर। अच्छा, मिले ना। हाँ। Yeah, so Vivek Avasthi, sir, this UP-based effort, and you have done in excellent in like 75 districts, a huge number, almost 3 to 4 state of India. It's equal to the 3 to 4 state of India differently. So this is an excellent effort, and we must say that these efforts will be replicated in other areas also, definitely. So we are privileged to have this case study in our publication, the previous publications. But yes, as mentioned by Dr. Rakesh sir, we will definitely document this effort again with the key outcome of these efforts at district level also, at the state level also. Because there are so many efforts and progress after these implementations happened in state of Uttar Pradesh. So thank you, sir, and I request the people who are there with us, please comment.
You can ask. Rajiv, we have Arunji and Ramesh Gandhi with us. Yeah, Dr. so Rajiv. we'll start with the Gandhi sir. Please comment on this presentation, and in case you want to ask Vivek ji any questions regarding this presentation, please go ahead. Dr. Ramesh Gandhi sir. I think he's no more with us. Maybe Mr. Arun Verma is there. Okay, so we'll go to Arun Verma sir. Thank you, Dr. Rajiv. I don't think I need to repeat that good work done by the UP, and I must congratulate UP government also, along with Vivek ji, for coordinating and setting up committees up to the district level, or for the effective initiative and strategies. मेरा एक ही सवाल है कि बहुत काम हो गया जी, पॉलिसी लेवल पे बहुत काम हो गया, अडॉप्शन में बड़ा काम हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी 5.3 अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत काम हो गया। जैसे राजीव जी ने एक पॉइंट बोला कि व्हाट आर दी की आउटकम्स ऑफ दिस, कि कभी कोई सर्वे भी अवस्थी जी मैं पूछना चाहूंगा, कोई इसका इम्पैक्ट जो आउटकम है, कोई सर्वे भी हुआ है कि जितना आपने काम किया उसका क्या इम्पैक्ट आया, कोई ऐसा सर्वे किया हो? हाँ, थैंक यू सर फॉर क्वेश्चन। और सबसे पहले राकेश गुप्ता सर का धन्यवाद। राकेश गुप्ता सर राजस्थान से, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं, जो सजेशंस हैं, जरूर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उनको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे और आगे उस रास्ते पर चलेंगे भी। तो टॉर्च बेरर की तरीके से आपने जो हमें बताया, जो बात कर रहे हैं कि अभी हमारा जो सर्वे है, यस, नेक्स्ट हमारा स्टेप वही होने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है राकेश गुप्ता सर ने वो वे फॉरवर्ड हमारा देखा था कि उसमें हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है या नहीं कर रखा है, और उन्होंने वो मुझे सजेस्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप निश्चित रूप से कुछ गुड प्रैक्टिस होती है तो वो वृहद पब्लिक हेल्थ के उसमें काम आए, तभी उसका कुछ इस्तेमाल है। तो हम इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए अब आगे जाएंगे, क्योंकि अभी प्रोग्रेस जो प्रोसेस है वो स्टेज पर ही रहा था। धीरे धीरे अब उसके इम्पैक्ट और रिजल्ट आने लगे हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको जाएंगे, डॉक्यूमेंट भी करेंगे, और इसमें जो भी यूपी विषय की तरफ से हो पाएगा वो करेंगे। और स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल का कमिटमेंट और जो डिपार्टमेंट का कमिटमेंट है उसके बिना पॉसिबल नहीं था। तो उनको साथ लेकर हम इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत खुशी होगी स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल, इस तरीके की चीज आती है। अवस्थी जी, मैं ये पूछना चाह रहा, क्योंकि आप नो दैट कि यूपी में स्मोकिंग इतनी प्रिवेलिंग नहीं जितना च्यूइंग प्रिवेलिंग है, और च्यूइंग वाली इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं जितनी स्मोकिंग वाली इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज है। तो आपने ये बताया कि वो अपना कॉरपोरेशन के आगे भी आके अपने धरने बने लगाते, ऑफिस के आगे भी वो आपकी एफर्ट्स को अंडू करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये अडॉप्शन ऑफ बैन ऑफ गुटखा एंड ऑल दिस, इन चीजों पे मैं जानना चाह रहा था कितना का इम्पैक्ट आता है इन चीजों का, या वैसे की वैसे चले जा रही हैं, हमारी एफर्ट्स पेपर्स पे बहुत ज्यादा हो जा रही हैं और फील्ड में रिजल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन था मेरा। देखिए सर, ऐसा है ना कि मैं बताऊं आपको, जैसे गुटखा बैन की बात है तो वो तो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट है। ड्यूरिंग द कोविड हमने जरूर एक्सपीरियंस किया कि कुछ लोगों ने जो है उसको, जब उसका सेल हमारे यहाँ कुछ समय के लिए पूरी तरीके से पान मसाला और सारी चीजें ड्यू टू कोविड स्प्लिटिंग की वजह से वो बैन हो गया था। तो उन लोगों ने रास्ते निकाले, ब्लैक उसके मार्केट की तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया, बेचा, तो वो मिला के। अदरवाइज गुटखा बैन वगैरह तो पूरी तरीके से इफेक्टिव है। ये जरूर है कि अभी रिसेंट में शेयर करूँ आपको, एफडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया था, कमिश्नर एफडीए ही हैज अथॉरिटी टू बैन इट। तो उन्होंने एक ही शॉप से पान मसाला और उसके साथ छोटा पाउच बेचने को ही बैन कर दिया था, और बैकग्राउंड में ऑर्डर लिया था सुप्रीम कोर्ट का 2016 का, और उसको चैलेंज कर दिया। जब हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मैंने विजिट किया कई बार, सीनियर ऑफिसर से, एफडीए से बात किया, तो उन्होंने कहा हाँ यार, जानते तो वो सारी चीजें हैं, और कितना स्ट्रांग है इंडस्ट्री, और हमने भी प्राइवेट वकील खड़े किए हुए हैं उनके अगेंस्ट, और उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में कर दिया कि कैसे हो सकता है। तो सारी चीजें हैं, वो भी प्रोसेस में चल रहा है। तो जो भी है रेटिएट, तो जब भी कोई इम्प्लीमेंट होने जाती है चीज, चाहे वो
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पूरी तरीके से आप देखिए बैन है और कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन अब ये अपना यूनिटरी बना के फ्रंट ग्रुप, अभी फतेहपुर में रिसेंट केस हो गया, हमारे स्टाफ बहुत परेशान हो गए उसमें, उनको काफी, वो स्टेट सेल में भी शिकायत आई, फिर वो भी यहाँ से जाने के लिए प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाए। डीएम साहब वहाँ निकल के खुद ही इन्फोर्समेंट कर रही थी, और एक दिन डीएम साहब साथ नहीं गए, दूसरी टीम थी, तो सारे लोगों ने घेर लिया। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन जाता है यहाँ पर, 29% जो है एसएलटी यूज है, बिल्कुल सही बात है। 13% सिगरेट का है, या स्मोकिंग का है, बीड़ी स्मोकिंग और सिगरेट मिला के टोटल। तो 29% चूंकि एसएलटी यूज है। और जब इससे पहले मैं पीएस साहब में मिले थे, वो भी कह रहे थे यार इसको, इसके लिए कुछ पॉलिसी आप करो। तो सारे लोग मिलके ही, अब जब हम लोग असेंबल होते हैं नेशनल लेवल पर भी, तो क्या क्या हो सकता है, कैसे उनका एडवर्टाइजमेंट रोकें, कैसे और दूसरी चीजें करें, इस पर हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एक रास्ता अभी निकाला है, अभी ऑन द वे है हम लोग। और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में कुछ उसमें होगा, जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं उसको कैसे हम लोग रोकें। वो एक जगह कमिश्नर लेवल पर ऑर्डर हम लोगों ने करा लिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करा लें, तो फिर आगे मैं आपको अपडेट करूंगा। विवेक जी, मेरे को आपसे एक थॉट चाहिए कि आप कोटपा का रिव्यू जो है वो स्टेट में कैसे होता है? मंथली बेसिस पे होता है, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट। डीटीसीसी जो होती है वो स्टेट सेल को रिपोर्ट करते हैं, कोटपा एनफोर्समेंट। सर, अभी तक जो हो रहा था, अभी तक जो प्रैक्टिस थी, मतलब हमारे एसएनओ साहब के आने से पहले क्वार्टरली हो रहा था। अभी क्वार्टरली हो रहा हमारे यहाँ से वो शुरू कर दिया, 4-5 महीने पहले से उन्होंने कहा नहीं नहीं मंथली रिपोर्ट लेंगे। तो सर अब मंथली रिपोर्ट में 75 डिस्ट्रिक्ट है, शुरुआत में तो कम ने दिया, फिर ज्यादा ने दिया, ज्यादा जब नहीं देते तो फॉलो अप करते हैं स्टेट लेवल पर, हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, और अमूमन वो 1-2 महीने में कर ही लेते हैं। और है। फोन चले जाते हैं यहाँ से जो टीम है स्टेट सेल की, तो वो अब मंथली रिपोर्टिंग हो रहा है, हमारे यहाँ स्टार्ट है ऑलरेडी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसी के साथ इसके कुछ पॉइंट्स को भी जोड़ लीजिए, ताकि आपका ये भी ऑडिट उसके साथ साथ ही हो जाए, टोबैको सर अभी मैंने, इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके अच्छा ऑडिट के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना इसका, जैसे 45 डिस्ट्रिक्ट में इसकी कमेटीज बनी है, तो अभी रिसेंटली 13 तारीख को, आज 21 है, 13 तारीख को एक ऑर्डर गया है कि हमें सारी कमेटीज का वो दे दीजिए। हाँ, आई टेक। तो एक बार वो आ जाए, उसके प्रोसेस में फिर ऑडिट के संबंध में फिर मैं आपसे वापस गाइडेंस के लिए आपसे संपर्क कर सकता हूँ कि ठीक कैसे है। करें, है ना, उसका प्रोसेस ओके। फिर लेना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा है, थैंक यू सर आपका विचार। So thank you, Dr. Rakesh Gupta sir, for this question, and Arun Verma sir, and thanks to you three for response. ये ना मिस्टर रमेश गांधी ज्वाइन कर गए आप कमेंट्स के लिए। Okay. So Dr. Ramesh Gandhi sir, if you here, you want to comment any question from your side on this presentation? Yeah, yeah. हाँ हेलो, जी रमेश जी, हाँ जी, आफ्टरनून एवरीवन। हम आपकी वेट कर रहे थे आपके कमेंट्स के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं बीच में 5 मिनट के लिए मुझे ऑफ स्क्रीन होना पड़ गया था, कुछ कोई बात इमरजेंसी थी, तो आई नहीं, हैड कोई टू गो आउट एंड आई जस्ट रिटर्न्ड एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द ऑडियो बात जॉइंट। सबसे पहले सबको नमस्कार। द डॉक्टर राकेश गुप्ता स्क्वायर दोनों एक साथ महानुभाव। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, और जो ये इनिशिएटिव यूपी में ले रहे हैं आप, आर्टिकल 5.3 पे, ये बड़े कॉमन से और एक मतलब सब जगह इसी तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं हर स्टेट में। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है कि क्या हम इन इनिशिएटिव्स को इतने सारे इनिशिएटिव्स लेने के जो एफर्ट्स हैं, उनके आधार पर क्या हम हेल्थ मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति के माध्यम से या पीआईएल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, क्या हम इतने सारे इनिशिएटिव के एफर्ट्स को लिवरेज करके और
और ज़्यादा स्टर्न एक्शन लेने के लिए एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू ये आपके विचार। कमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता राकेश सर ने साइफर से भी और डॉक्टर राकेश सर ने यही बिल्कुल लगभग एक बात उन्होंने भी कही है कि इसको डॉक्यूमेंट करें, इसको प्रॉपर तरीके से, ताकि इसको वृहद रूप से इसको और इंटेंसिव करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए कुछ प्रयास किए जाए। तो वही सर बातचीत हो रही थी, मुझे लगता है कि समझ में राकेश सर ने भी मैं निश्चित रूप से हम मतलब एक सबके साथ हेल्प लेकर और सबके साथ ये सुजन करेंगे। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आज के करंट पर्सपेक्टिव में, जैसे आज भारत बंद है, तो रिजर्वेशन का एक आंदोलन चला, या ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है उसके अगेंस्ट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया और पूरा भारत बंद है। तो 28 करोड़ तो डायरेक्ट टोबैको कंज्यूमर ही है भारत में। तो इतना बड़ा स्टेक होल्डर ग्रुप है, तो क्या हम इस तरह का एक सिविल सोसाइटी का आंदोलन जो है इनिशिएट कर सकते हैं? मतलब इतना बड़ा, ऐसे भारत बंद करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या सिविल सोसाइटी के सारे लोग या इतने सारे लोग मिलकर के व्हाट मैकेनिज्म कैन बी डेवलप कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और सीजेआई को, जुडिशरी को, जो भी टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इसमें, उन पे इस तरह का प्रेशर करें और साथ में वो प्रेशर जो है वो मीडिया में परकुलेट हो, so that the voice of all the stakeholders and all the good efforts being done by every one of you is heard by public, and then some way is made to improve the implementation of all the articles of FTCC and CORPA for tobacco eradication. Thank you. सर बस एक लाइन में कह दो, फिर मुझे लगता है कि राकेश गुप्ता सर अच्छी तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सर देखिए एक स्ट्रेटजी है टोबैको कंट्रोल की भी। जब भी हम कभी टोबैको इंडस्ट्री के खिलाफ या मालिक वेंडर्स के खिलाफ क्या है, कोई खिलाफ नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टोबैको कंट्रोल के लिए जो गवर्नमेंट की नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है या जो कोटपा लॉ है या दूसरे लॉ इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, तो उनके पास एक जो फ्रंट ग्रुप है ना, लेवरेज है उनके पास एक, कि वो सबको इकट्ठा करके और वो कर सकते हैं, उनके खिलाफ क्या ही एक्शन हो सकता है। मगर आप देखते हैं कि हम लोग एज अ सिविल सोसाइटी या एक्टिविस्ट इस तरीके की गतिविधियां थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि जो हम लोग अलग स्ट्रेटजी में चलते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा वो एडवाइजेबल मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। मगर बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि साइफर से गुप्ता सर और राकेश गुप्ता सर, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ पहले काम किए हैं और आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, टोबैको कंट्रोल में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर इसका जवाब सब दे सकते हैं। सो रमेश जी, एक्चुअली हमारा ना एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स वाला जो एक्ट था पीका, उसके लिए बड़ा अच्छा रहा, बिकॉज इट वाज अ टॉप डाउन बॉटम अप्रोच है। पहले स्टेट्स ने किया, 17-18 स्टेट्स ने कर लिया उसको बैन, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हम प्रेशराइज कर सके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड एक्ट, और एक पहले ऑर्डिनेंस हुआ, फिर एक्ट भी बन गया उसका, पीका 2009। बट ये है कि मैं उस बारे में कमेंट नहीं करता कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी। इट मे टेक सम टाइम, मोर टाइम, so that the police department also know about that act. तो इसी तरह से मेरे ख्याल से ये जो आर्टिकल 5.3 की जो एम्पावर्ड कमेटी है और प्रोटोकॉल्स जो बने हैं, बहुत सारे मेरे ख्याल 13-14 स्टेट्स में बन चुके हैं, शायद इससे भी ज्यादा, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। और 45 में सर, 45 नहीं, यहाँ पे 22 में बन गया सर, 22 स्टेट ने उसको 22 में अडॉप्ट कर लिया। 22 स्टेट्स में, अच्छा, तो 22 स्टेट्स इज अ वेरी गुड फिगर, है ना। तो अगर ये हम लेके अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएं और सेंट्रल लेवल पे कोई एक्ट बन जाए, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ ये कमेटी बनाने की वजह से, नोटिफिकेशन होने की वजह से, और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर्स के पास ये भेजने की वजह से हमारे टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस बहुत कम हो गई थी पंजाब में। तो वैसे भी पंजाब में कम थी, मगर और ज्यादा कम हो गई थी उससे। मतलब कोई भी हिम्मत नहीं करता था आने की ना हमारे पास डायरेक्टली। उससे पहले 5-6 इंस्टेंस हमारे साथ हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में भी, पान मसाला के बारे में भी, जो गुटखा हमने बैन किया था, लूज सिगरेट के बारे में भी। मगर ये जब से हमने एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, उसके बाद टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस बहुत कम हो गई। तो आपका वो सुझाव बहुत अच्छा है
कि अगर ये कंपाइल करके या किसी ये जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सजेस्ट किया था कि कोई स्टडी की जाए इसके बारे में, और मतलब कंपाइल वे में अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएं तो इट विल मेक एन इम्पैक्ट डेफिनेटली। बट इन द मेन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू की थी सबको कि दिस शुड बी दिस नोटिफिकेशन मस्ट बी डन। I think that is so we are going in the right direction that as far as Article 5.3 is concerned. ओके एक ही इम्प्लीमेंटेशन स्टेप जो है वो प्लान कर लीजिए आज की मीटिंग के साथ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक मैनुअल तैयार कर लेंगे, राजीव और आप भी और हम सब मिलके, हाँ जी कि एक जो है वो मैनुअल हम चाहे वो स्टेट के सीएम से रिलीज करा लें या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से करा लें जैसा रमेश जी कह रहे हैं, हाँ हाँ वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा, है ना, जिससे क्योंकि कि रमेश जी के ना लिंक ये मीडिया के साथ काफी अच्छे हैं, तो मे बी ही विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस ऑन दिस इशू। तो रमेश जी आप भी इसमें कोशिश करना, ये जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया कि बना तो लेंगे, या राजीव भी कोशिश कर लेगा अगर कोई प्रोविजन होगी इनके प्रोजेक्ट में, तो आई थिंक इट कैन बी डन। कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि नहीं होने वाली, तो डॉक्टर राकेश का बिल्कुल सजेशन बिल्कुल ठीक है। और रमेश जी आप भी इसमें ना हेल्प करें हमारे श्योर मीडिया में प्रोपोगेट करने में। श्योर। आप जब ये इसका कंपाइलेशन कर लेंगे तो उसका समरी को हम मीडिया में अलग तरीके से रिलीज करा सकते हैं, और उसके बाद फिर जो फाइनल वर्जन होगा हाँ उसके लिए प्रेसिडेंट हाउस से अपॉइंटमेंट लेने का काम जो है वो मैं अपने फ्रेंड्स के माध्यम से करा सकता हूँ। राइट राइट, सो दैट विल बी वेरी गुड एक्शन। विवेक, वी हैव अ डायरेक्शन लेड आउट। हाँ ये देखो ये इसका आउटकम कितना अच्छा निकला है इस मीटिंग का। हालांकि देवर जस्ट 30 पीपल एट द मोस्ट हु जॉइंड इट, बट है कि सबने बहुत ध्यान से सुना, और इसका आउटकम जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता की वजह से शायद ये बहुत अच्छा निकला है। और रमेश जी ने भी अपना हमें बोला है कि ये अपनी सारी मदद करेंगे, जैसे हो सकता है प्रेसिडेंट से ये रिलीज हो जाए बुकलेट, so that would be very good. So Rajiv आप भी ध्यान रखो। So I think we Yes, can sir. move to vote of thanks, formal vote of thanks, if there are no more questions, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल। Thank you. So thank you, sir, first of all, for giving this opportunity. And on behalf of Cypher and Resource Center for Tobacco Control at PGI Chandigarh and supported by Eco India, I, Rajiv Chaudhary, extend our heartiest gratitude to each and everyone present here today. A special thanks to Vivek Avasthi, sir, for giving this very excellent presentation and sharing the experience of Uttar Pradesh in implementation of Article 5.3 from bottom to up approach. So thanks to Vivek Avasthi, sir, for this nice presentation. And I thanks to and congratulations to the organizing team under leadership of Dr. Rakesh Gupta, sir, Mr. Arun Verma, sir, from Cypher, and also a team of Eco who are supporting us in the online platform, who did not leave any stone